हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह की। सुबह सुबह आपको हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा के नाम से। We greet you in the early morning in the name of Jesus. हम परिवार होकर आपके घरों में आने के लिए प्रभु मौका दिए, इसलिए धन्यवाद। God give us one opportunity to come to your house. We give glory to God. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly Father, we इस thank अच्छी you दिन के लिए। for this beautiful morning. प्रभु जी तेरी महिमा होने दे, Let your kingdom come. पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति से भर दे। Lord, thank you for filling us with your Holy आपके बिना presence. कुछ नहीं करना चाहते, Without you we can do nothing. महिमा से भर दे प्रभु। Fill us with your हर glory. व्यक्ति जो हमें देख रहा है Every person who is वो हमें नहीं, watching वो us. आपको देख रहा है। They're not watching us. आपकी they're watching महिमा you. होने दे Let your प्रभु। name be glorified here. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीहा है। Jesus Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name. सुन और ग्रहण Hear कर। and answer. आमेन। Amen. आइए हम पढ़ेंगे लेवियों की किताब 23 उसका 6। Shall we read Leviticus 23:6? और उसी महीने के 15वें दिन को On the 15th day of the same month यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ कर। is a feast of the unleavened bread. उसमें तुम 7 दिन तक 7 days अख़मीरी रोटी खाया you करना। must eat unleavened bread. पहला कोरिन्थियों 5 उसकी 8। 1 Corinthians 5:8. इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएंगे। 5:8 पहला। Therefore let us keep the feast. मैं आनंद मनाऊंगा, Let us keep the feast ना तो पुराने खमीर से, not with the old leaven, बुराई से, nor with the leaven of दुष्टता malice की खमीर से, and wickedness, परंतु सिधाई और सच्चाई की but the अख़मीरी unleavened रोटी से। bread of sincerity and truth. हालेलुया। हम Hallelujah. लेवियों के किताब को पढ़ रहे हैं We are studying the book of Leviticus. और हम पर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। We're talking about the feast. कितना पर्व हमने पढ़ा? How many feasts did we learn? एक सबत का, One, the Sabbath. दूसरा पसाई का पर्व। Second, the feast of the Passover. आज हम देखेंगे अख़मीरी रोटी की पर्व। We'll see the feast of unleavened bread. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. पर्व हमेशा उत्सव मनाने का है। Feast is for rejoicing. विश्वासी के जीवन उत्साह से भरना चाहिए, Every person's life should be filled with rejoicing. पर शैतान ने सारी उत्साह को, खुशियों को चोरी कर लिया। But Satan robs the celebration rejoicing. परमेश्वर की कलीसिया से शैतान ने सारी खुशी को, उत्सव के मौसम को छीन लिया है। But Satan has robbed the what is that celebrating? उत्सव को छीन लिया है। He has robbed the celebration from the church. पर प्रभु को धन्यवाद हो, मसीह यीशु ने हमें वो जय के उत्सव में लेके जा रहा है। Thanks be to God, He leads us in triumphal victory. अख़मीरी रोटी की पर्व के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, Thank God for the feast of unleavened bread. क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आता है। It will manifest, reveals the spirit of holiness in us. पुराने जीवन निकल गया, नया जीवन आ रहा है। The old nature has gone and now new nature has come. मसीह यीशु में मेरा जीवन नया है। In Christ Jesus, my life is new. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है। For the word of God says, those who are in Christ Jesus are a new creation. फीस्ट ऑफ अनलीवन, दो तीन बातें हम बात करेंगे। We'll learn 2-3 things about what पहले is बात, unleavened bread. हमको सेलिब्रेट करने के मेरा पुराना जीवन निकल गया, प्रभु मुझे नया जीवन दिया है। We must celebrate that the old nature, the old life has passed away and I'm living a new life. पुराना स्वभाव शैतान का निकल गया है और यीशु की नया स्वभाव आया है। The old nature of Satan has been gone and new nature of Christ has come. इस्राएली लोग मिस्रैम से निकल गया था। In the Old Testament, the Israelites had got out of Egypt. पासओवर के बाद मिस्रैम से निकलकर नए जगहों पर प्रवेश कर रहा था। It was symbolizing that the Israelites had left in the Passover. They left Egypt and now they're starting a new life. नए विश्वासी में नए जोश रहते, बस आस्ते आस्ते वो जोश खत्म हो जाता है। कारण क्यों? उसने उस नए जीवन का उत्सव मनाने सिखा नहीं। When the person is a new believer, there's so much of first love and there's so much of excitement. But after later on, this excitement goes away slowly. पर जब आप उस नए जीवन में उत्साह मनाने लगेगा जिंदगी भर, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह में मैं चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा।
when we start with the newness of Christ, we must keep it for their entire lifetime. Therefore, we always say we began in Jesus and we must finish in Jesus. आमेन। वो आटे लेते थे बिना बिना खमीर के, They would take the dough without the leaven और उसमें उसको तैयार करके खाना बनाते थे, and they would prepare it और उस 7 दिन तक उसी आटे में बने रहते थे। and they would live for the 7 days. They would eat that bread. आमेन। यानी कि 7 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते थे। And in 7 days they would rejoice in God's presence. हालेलुया। बाकी सारी बातें जो प्रभु और प्रभु की नहीं है निकाल कर प्रभु में ही खुश रहते थे। All other things they would remove from their life and they would only rejoice in the Lord. व्यवस्था विवरण 16 उसका 3 से 8, ड्यूटरोनॉमी Deuteronomy 16. 16 3 to 8। उसके संग कोई खमीर वस्तु ना खाना, हिंदी बुक में 236। उसके संग कोई खमीर वस्तु ना खाना, You shall eat no leavened bread with it. 7 दिन तक अख़मीरी रोटी जो 7 days you shall eat unleavened bread दुख की रोटी है खाया करना, with it, that is a bread of affliction. क्योंकि तू मिस्र देश में उतावली करके निकाला था। For you came out of the land of Egypt in haste, इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन that you may remember the day in which you came out of the जीवन land भर of Egypt, स्मरण रहेगा। all the days of your life. 7 दिन तक तेरे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने भी न पाए, No leaven shall be seen among you in all it जो पशु तू 7 पहले दिन की संध्या को Nor shall any of the meat which you sacrifice बलि करके उसके मांस से कुछ सवेरे the तक रहना। first day at twilight फसक के अपने किसी फाटक के भीतर, remain overnight until morning. जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलि ना करना। 5th one, You may not sacrifice the Passover within any of your gates which the Lord your God gives you, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को दिया है, but at the place which the Lord your God chooses of to make his name चुन ले abide, केवल वही there you shall sacrifice the वर्ष के Passover उसी समय जिसमें तू मिस्र में at निकाला था, twilight, at the going down of the sun, अर्थात सूरज डुबाने के संध्या काल को at the time you came out of Egypt. फसक का पशु बलि करना। You shall roast and eat it in the place. आमेन। कितना लोग सुन रहे? How many people 7 listen? दिन तक वो प्रभु में उत्सव मनाते थे। 7 days they would rejoice in celebrating the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उस अख़मीरी रोटी खाकर, By eating the feast of unleavened bread, भेंट चढ़ाकर, by giving sacrifice, बलिदान करके giving offering, प्रभु की उपस्थिति में बना they रहते। would remain in the presence of वो God. उनको ऊर्जा देता है। That would give them energy. उसी तरह The same manner, जब हम यीशु मसीह में आए, when we are in Christ Jesus, हमारे पुराने स्वभाव को our old nature सब कुछ निकल गया। is gone away. अब मैं नया हूँ, Now we are a new अब मैं creation. प्रभु में हूँ। I am in Christ Jesus. 2 कोरिन्थियों 5 उसका 17 2 Corinthians 5:17. मिला। We get it? इसलिए यदि कोई मसीह में है Therefore, if anyone is in Christ Jesus, तो वो नई सृष्टि है। he is a new creation. पुरानी बातें बीत गई, All things are passed away. देखो सब कुछ नया हो गया। Everything has become new. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, All these are from the Lord. जिसने मसीह के द्वारा That through Christ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। reconciled us to himself अब मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। and given us the ministry of reconciliation. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो, मैं नया हो गया। Say loudly, I am new. मसीह यीशु में मैं In Christ Jesus, I am a नया हो गया। new creation. हालेलुया। Hallelujah. वो जब सोच आपके अंदर रहेगा, When that thought comes in your mind, पुरानी बातें आपके जीवन से निकल गया। the old nature has gone from your life. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हूँ। Apostle Paul says, I forget the former things, I look out for the new things. पहला कोरिन्थियों 5 उसका 7 और 8 1 Corinthians 5, 6 and 8. 7 and 8 7 और 7 8 and 8. पहला कोरिन्थियों 5 उसका 7 और 8 1 Corinthians 5, 7 and 8. पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो Now purge out the old leaven, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। that you may be a new lump.
हमें नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, may be a new lump. ताकि तुम अकमरी हो, Since we're truly unleavened, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह में है बलिदान हुआ। indeed Christ our Passover sacrifice for us. क्योंकि क्योंकि प्रभु हमें नया किया है। But God has made us new. कैसे? How? उसके बलिदान के द्वारा। Through His sacrifice. 8वां वाक्य कहते हैं, इसलिए आओ Verse 8 says, therefore let us हम उत्सव में आनंद मनाएं। keep the feast. उत्सव में आनंद मनाएं। Let us keep the feast. हमारा दिन हर रोज प्रभु के उत्सव में, हमको मौका ढूंढने का कैसे मैं प्रभु में आनंद में बढ़ता We should हूँ। always look out for opportunity. How प्रभु will I की rejoice in आनंद the मेरी Lord? ताकत है। The joy of the Lord is my strength. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, Therefore let us keep the feast, ना तो पुराने खमीर से, not with the old leaven, ना बुराई nor with the leaven of दुष्टता की malice खमीर से, and wickedness, परंतु सिधाई but with the और unleavened bread सच्चाई की अखमेरी रोटी से। of sincerity and truth. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सारी दुष्टता निकल गया। All the wickedness has come to an end. खमान हमको सेलिब्रेट करने We का। have to celebrate it. जब हम प्रभु में नहीं थे तो शैतान हमें इस्तेमाल करते थे, When we were not in the Lord, Satan would use us. पर जब हम प्रभु में आए तो प्रभु हमें इस्तेमाल करने का। Now that we are in the Lord, Jesus uses us. इंद्रियों को शैतान इस्तेमाल करते थे। The senses were controlled by Satan. आपकी आंख, आपकी हाथ, आपकी पैर, आपको सबको शैतान कंट्रोल कर रहे हैं। The eyes, the hand, the feet, everyone was controlled. जिस by दिन आप Satan. यीशु को ग्रहण किया, The day you accepted Jesus, आपके इंद्रियां, your senses, आपकी आंख, your आपकी eyes, कान, your आपकी मुंह, ears, आपकी your हाथ mouth and your hand. प्रभु इस्तेमाल करें। Now the Lord. इसलिए हमको हर रोज सुबह अर्पण करने का है। Therefore every day morning we Hallelujah. offer ourselves. Hallelujah. आपका पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर खीला ठोका गया। The old nature has been crucified with Christ Jesus on the cross. आपके जीवन से शैतान की जो पावर है टूट गया। From your life, the power of Satan has been broken. शैतान की जो सामर्थ्य, पाप की जो सामर्थ्य टूट गया। The power of sin has been broken from your life. अब आप उसके अधीन में नहीं है। Now you're not under this authority. खमान जोर से बोलो, मैं उसके अधीन में नहीं। Say रोमियो loud, 6 "I'm उसका not 6। under this authority." Romans 6:6. रोमियो की किताब 6 उसका 6। Romans 6:6. जोर से बोलो, मैं शैतान के अधीन में नहीं। Say loudly, "I'm not मैं in the पाप के authority- अधीन में नहीं। I'm not in the authority हम of जानते Satan." कि हमारा पुराना मनुष्य तो Knowing this, that our old man was crucified उसके with him, साथ क्रूस पर चढ़ाया गया with him, ताकि पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए that the body of sin might और be हम done आगे को away. पाप के दास्तों में ना रहे, I should no longer live for slaves of sin. क्योंकि जो मर गया He was died, वो पाप से छुटकारा has been freed from sin. धर्मी ठहराया। जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया। Say loudly, I'm righteous of God. 14वां वाक्य, Verse 14. तब तुम पर पाप की प्रभुत्व न होगी, Sin shall not have dominion क्योंकि over तुम you, व्यवस्था के अधीन नहीं for you're not under law, वरना अनुग्रह के but अधीन under में। grace. हाँ, जोर से बोलो, मैं व्यवस्था के अधीन में नहीं। Say, I'm not under law, करना, धर्म, इनके अधीन में नहीं, मैं अनुग्रह के अधीन में। doing work. I'm मैं- not under law, but under grace. हालेलुया। Hallelujah. आप यीशु मसीह का है। You belong to Jesus. जोर से हाथ अपने सिर पर रखो, बोलो, मैं यीशु मसीह का हूँ। Put your hands on the head and say, I belong to Jesus Christ. आपका सब कुछ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर कीले ठोके गए, मारा गया। Everything of yours was crucified on the cross of Calvary. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो, मेरी पुरानी बातें निकल गई Say the old things are passed away. और नए बातें, नए जो यीशु की बातें मुझ में आ गया। All things have become new now. गलातियों की किताब 5:24। Galatians 5:24. गलातियों की किताब 5:24। Galatians 5:24. जो मसीह यीशु को Those who are Christ उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, have crucified the flesh अभिलाषाओं समेत with its passion and desire. क्रूस पर चढ़ा दिया है। Crucified the कमान flesh. जोर से बोलो, मेरी लालसाएं, All my passions and अभिलाषाएं and desire. मैं क्रूस पर चढ़ा दी। I've crucified. अब the मेरी cross. इच्छा नहीं, That's not my अब will. परमेश्वर की इच्छा मुझ पर पूरा God's होगा। will will be done. हालेलुया। Hallelujah. खुशी खुशी हमें उसे स्वीकार करने का। We have to gladly receive Him. आमीन। अपने आप को पाप से और शरीर के कामों से आजाद करने का।
We have to set ourselves free from sin. वो तभी होगा जब नया स्वभाव हम स्वीकार करेंगे। And this only happens when we receive the new nature. इसलिए हम बार बार बोलते हैं, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु हमें नया जीवन दिया है, उसकी उत्सव मनाने का है। God has given us a new life. We have to rejoice, celebrate. जब तक हम उत्सव नहीं मनाएंगे, When we do not celebrate, जब हम उत्सव मनाते हैं तो क्या होता है? when we celebrate, what happens? खुशी होता है, There's a rejoice. आनंद होता है। There's and ये नया जीवन की खुशी और आनंद को हमको हर रोज मनाने we का। have to celebrate every day, rejoice in the new. हालेलुया। क्योंकि Hallelujah. वो पुरानी मनुष्य तो निकल गया, The old nature has passed away. अब परमेश्वर की नई मनुष्य तो मुझे प्रभु दिया। Now God has given me a new nature. प्रभु ने मुझे नए वस्त्र पहनाया God has given me a new robe of ताकि righteousness. मैं इस नए स्वभाव में प्रवेश करके जीते रहूं। That we may, I enter into a new nature and rejoice. हालेलुया। अब तब तक उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। You will not be able to enjoy it till you understand it. इसलिए हमें उस अख़मीरी रोटी की पर्व को मनाने का है। Therefore, we must always celebrate the feast of the unleavened क्यों bread. मनाने का है? Why? क्योंकि प्रभु ने मुझे अंधकार से, कल मैंने बोला, ज्योति में लाया है। Because God has translated out the kingdom of darkness into the kingdom अब of मेरे light. अंदर अंधकार की स्वभाव नहीं, ज्योति के स्वभाव है। Now I don't have the nature of darkness, but the nature of light. यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता, जीवन और सत्य है। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. हमें उस जीवन रास्ता को, देखो, हमको प्रभु नहीं बोलेगा जो प्रभु नहीं किया है। God will not tell us to do something which He has not. हमारे आगे यीशु मसीह गया, Before us, Jesus went. इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूँ। So Jesus said, I am the हमको way. उसी रास्ते में जाने का जो यीशु मसीह मुझे चला I रहा है, only walk in that way, but Jesus led me. बाकी किसी को देखने का नहीं। We do not look at anyone. दुनिया की सदस्य मत बनो, We should not be conformed to उसका the मतलब हमको यीशु की सदस्य बनने का Therefore, है। we should be members of यीशु ही Christ. जीवन है, Jesus is life. यीशु ही सत्य है। Jesus is truth. हालेलुया। Hallelujah. पहले बात हमको सेलिब्रेट करने का है, First of all, we should celebrate. क्योंकि मेरा पुरानी आदत प्रभु निकाल दी, Because God has taken away my old nature पुरानी सोच निकाल दिया, and old thoughts. पुरानी दोस्तियारी काट दिया He है। has cut off the old कई friends. लोग विश्वास में आके पुरानी दोस्तियारी काट नहीं सक रहे, People come into the new faith, but they can't cut off old इसलिए वो friendship. प्रभु में आकर भी पीछे वापस चला जाते हैं। Therefore, they come into Christ and go back. कारण क्यों? उसने इस नए स्वभाव का उत्सव मनाने सीखा So नहीं। they're not able to celebrate the new हमारा जोर से बोलो, nature. कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? बोलो, मैं सब नए स्वभाव, मेरा पुराने स्वभाव निकल गया, My old nature has passed away. मेरा नया स्वभाव में मैं हर रोज जय के उत्सव मनाऊंगा। I will celebrate my new nature in Christ Jesus. दूसरी बात, पुराने नेचर निकल गए Second, तो उसका मतलब नया नेचर आया। now I've got a new nature. उस नए नेचर में हमको हर रोज सेलिब्रेट करने का है। I should always celebrate the new nature. हालेलुया। Hallelujah. जब इस्राएली लोग मिस्रैम से निकल पड़े, हर रोज वो उत्सव मनाते थे। When Israelites came out of Egypt, they would always celebrate every day. एक न्यू ईरा में वो आ गए। They came to a new era. पहले वो गुलामी थे, They were first in bondage. फरो राजा के अधीन में रहते थे, They lived जो in जो वो बोलते थे वो bondage करते of थे। Pharaoh. They would अब वो listen to नया what ईरा में Pharaoh आया, said. Now they come to a new era. परमेश्वर और परमेश्वर के अभिषेक के लीडरशिप में आया। They come under the leadership of God. जब वैसे आप आते हैं, आपका जीवन अद्भुत होने वाला है। When you come in that manner, your life will be. अब मिस्रैम वाला आपको डोमिनेट नहीं करते, Now the things of Egypt will not dominate you. अब वो श्राप आपको छू नहीं सकता। That curse cannot इसलिए touch you. परमेश्वर ने कहा, मिस्रैम में होने वाला बीमारी तुझे छुएगा नहीं। Therefore, God said the things, sins of the sickness of Egypt अब cannot touch. गुलामी नहीं, Now no bondage. यीशु मसीह में गुलामी नहीं। In Christ Jesus, there is no bondage. जिसे पुत्र आजाद करते वो आजाद है। Whom the Son set free, they are free indeed. पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो आजाद है। Holy Spirit is in whose heart He अब is. सब कुछ नया हो गया। Everything has become new. हाँ, जोर से बोलो, अब सब कुछ नया हो गया। Say loud, yeah. Everything has become new. हालेलुया। Hallelujah. अब हमारा नया मालिक हो गया। Now we have a new master. पुराना मालिक रौब जमाता था, बॉसगिरी करता था। The old master would boss over you and अब- always. अब नया dominate you. मालिक यीशु मसीह हमें आजादी देता है। A new master is loving and He gives us freedom. वो हमें पकड़ के नहीं रखता, वो हमें आजाद किया है। He
He doesn't hold and keep us, but He sets us free. मसीह यीशु में मेरा जीवन नया है, उसकी उत्सव हमको A मनाने का। new person in Christ Jesus. आप नहीं समझ सकते कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर कर रहा You है, can't understand what God has done. हमारा समझ के बाहर है। It is beyond our understanding. आप नया जीवन, इसलिए बोलता है न्यू बर्थ, नया जन्म लिया है यीशु मसीह में। Now we have taken a new life in Christ Jesus. नया जन्म, नया स्वभाव से वो मेरा डैडी है। New life and new nature is my daddy. इसलिए पहला यूहन्ना 5 उसका 1 में लिखा है, 1 John 5 says, पहला यूहन्ना 5:1, 1 John 5:1, जिसका यह विश्वास है whoever believes यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, that Jesus is a Christ, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, born of God, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है everyone who loves Him, वह उससे भी प्रेम रखता है who begot also जो loves उससे Him, उत्पन्न हुआ है। who is begotten of जिस Him. दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, The day you receive this kind of life, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, you are born of God. आप परमेश्वर का संतान हो You गए। are a child of God. हम जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ। Say, I'm born of God. इसलिए हम नया जन्म पाए हैं। Therefore, I'm born. जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करके यीशु मेरा प्रभु बोलते हैं, आप नया जन्म लेते हैं। The day you receive this kind of life, you become new, born again. आप परमेश्वर में जन्म लेते हैं, You are born in the आप Lord. परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। You become the child of God. इसलिए आपको बोलना जरूरी है, यीशु मेरा प्रभु, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। Therefore, it's very important to tell that what is that? यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। That Jesus is my Lord, I will live for Him. और फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड, अख़मीरी रोटी की पर्व, The feast of unleavened bread बैप्टिज्म को भी दर्शाता है। also symbolizes baptism. आमेन, Amen. हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10 उसका 2, 1 Corinthians 10:2. पहला कोरिन्थियों 10 उसका 2, 1 Corinthians 10:2. और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। All were baptized into Moses in the cloud and the sea. आमेन। Amen. अख़मीरी पर्व के समय ही वो रेड सी के पार किया, दोनों बाजू में सी और बीच में से इस्राएली लोग निकला। In the time of feast of unleavened bread, they passed through the water, the Red Sea. मसीह यीशु में In Christ आप Jesus, मरा, you died, दफनाया गया buried, और फिर यीशु मसीह में जी उठा। and you rose up again. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise अब the किसके लिए मरा? पुरानी आदत, पुरानी स्वभाव, पुरानी जिंदगी के लिए मरा। अब यीशु मसीह में नया जीवन में आप बपतिस्मा के द्वारा प्रवेश To करता whom है। you died, the old nature, the old life, and now you इसलिए come out of the बपतिस्मा new बहुत nature. इम्पोर्टेंट है। Therefore, baptism is किसी को very बोलो important. बपतिस्मा नहीं लिया, ले लो। If you have not taken baptism, take it. आप क्रिश्चियन बनने के लिए, कलीसिया से जुड़ने के लिए बपतिस्मा नहीं You are not लेते, baptized to become a Christian or to be joined to Jesus. पर यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए but to बपतिस्मा be ले। one with Jesus Christ. उसका जीवन के साथ, With His life, उसके मौत के साथ, with His death, उसके गाड़ने के द्वारा, with His burial, उसके जी उठने के द्वारा with His getting a new life. आप प्रभु एक यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। You become one with Jesus Christ. रोमियो की किताब 6 पढ़ेंगे, We'll read 6:4. Romans 6:4. रोमियो की किताब 6:4 Romans 6:4. मिला। Did you get it? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से We are buried with Him through हम उसके baptism साथ गाड़े गए, unto death. ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा Just as Christ was raised from the मरे dead में से जिलाया गया, by the glory of the वैसा Father, हम भी even so, नए जीवन में we also सी should चाल walk चले। in newness of life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे? How many are listening? बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। Baptism is very important. क्रिश्चियन या धर्म या कलीसिया से जुड़ने के लिए नहीं लेते, Not for the Christianity to become a Christian हम or मसीह यीशु के साथ एक होते religion, हैं। but we become one with Jesus Christ. और एक बार पढ़ेंगे, Shall we read again? हम जानते कि हमारा पुराना मन 6:4, ओके 6:4,
6. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से Therefore we are buried with him, हम उसके साथ गाड़े गए, to baptize unto death, मसीह पिता की महिमा के द्वारा just as Christ was raised from the मरे dead हुए में से जिलाया गया, by the glory of the Father. वैसे हम भी Even so also नए जीवन से चाल should चले। walk in newness of life. Come on, मैं मसीह यीशु मसीह के साथ I believe in Christ Jesus. पानी में से बाहर आया। I come out of the water. जिस तरह यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय उतरा और आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ। Just like Jesus came out of the water, and after baptism, the dove came upon him, and there was a voice came from heaven saying, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." आप जब बपतिस्मा लेता है, आकाशवाणी होता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। When you take baptism, the voice of the heaven comes and say, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." और उसके बाद हमारा मनों को नया करते जाने का। After that, God makes our mind new. रोमियो 12 उसका 2, Romans chapter 12 verse 2. हमेशा ये वचन बहुत अद्भुत वचन है। रोमियो 12:2। Romans 12:2. कितने लोग हर रोज ये वचन बोलते हैं? How many of us say this word every day? जरूर बोलिएगा, क्योंकि ये आपको नया करता है, आपका मन को नया करता है। God makes our life new. इसलिए भाइयों मैं तुमसे एक से पढ़ेंगे, इसलिए भाइयों मैं तुमसे I beseech you therefore, दया brethren, स्मरण दिलाकर विनती करता by हूँ, the mercies of God, अपने शरीरों को जीवित that you present your body as a पवित्र, living sacrifice, परमेश्वर को holy, भावता हुआ acceptable to बलिदान God, करके चढ़ाओ, as your reasonable service. वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Which is your reasonable इस service. संसार की सदस्य मत Do बनो, not be conformed to this परंतु world, तुम्हारी मन के नए होने से but be transformed by the renewing of your तुम्हारा mind, चाल चलन भी बदलता that you जाए, may prove what is good जिससे परमेश्वर की and acceptable, भली, good, भावती, acceptable, सिद्ध and perfect इच्छा अनुभव से will मालूम of करते God. रहो। Will of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने आपका मन को आप नया करने You का, have to make your mind new. जब प्रभु में आता है, इसलिए बार बार बोलता हूँ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, We गवाही always say, बनो, read the word, pray, worship, be a testimony. तो क्या होता है? आपका मन नया होता What happens? Your mind, है, पुरानी बातें निकल गई, old nature goes on. आपका नया नया मन आ गया। You have a new mind. प्रभु इसलिए बार बार वो हाथ रख के बोले, ये मन मेरा नहीं, ये मन यीशु का मन है। You must always say, this mind is not of mine, but it's mind of Christ. ये मन में यीशु की बात चलना चाहिए, In this mind only Jesus ये was. मन में यीशु की सोच चलना चाहिए। In this mind only God's जिस thought तरह is. आप अपने मन को ट्रेन करेगा, Just like you train your उसी mind, तरह आप आत्मिक तौर से उन्नति पाएगा। the same way you will get upliftment. रोमियो 8 उसका 11। Romans 8 to 11. यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, To the spirit of him who जिसने यीशु को raised Jesus from the dead तुम में बसा हुआ है, dwells in you. जो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, He who raised Christ from the dead वही तुम्हारा नाशवत देह को will also give life to अपनी your mortal आत्मा के body द्वारा through the spirit जो तुम में बसा हुआ है who dwells in you. जिलाएगा। Will पवित्र आत्मा के द्वारा make alive through the Holy Spirit. आपकी आत्मा को, Your life, आपकी शरीर को, your body, आपकी प्राण को your soul जिलाएगा। will be made alive. इस सत्य पे आप उत्सव मनाने का, In this truth you shall celebrate. आपको नया स्वभाव मिला है, Got a new nature, आपको नया मन मिला है, got a new mind. पत्थर वाला दिल निकाल God कर take up the heart of stone, मांस वाला दिल give प्रभु the heart दिया of है। flesh. अब जितना उत्सव मनाएगा उतना प्रभु में बढ़ता The जाए। way you celebrate, you will rejoice in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सेलिब्रेट करेंगे? How many should celebrate? क्या चीज के लिए सेलिब्रेट करेंगे? What shall we एक celebrate? पुराना स्वभाव निकल गया, The old nature is दूसरा gone. नया स्वभाव आया। New nature is किसका come. स्वभाव आया? Whose nature has यीशु come? का स्वभाव। The nature of Jesus. इसलिए यीशु मसीह जो करते थे हमको करने का है। Therefore, whatever Jesus did, we have to do. सुबह उठ के यीशु मसीह क्या करते थे? टीवी देखते थे। When Jesus would get up in the morning, he would watch TV. नो, वो अति भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, No, early morning he would rise up and pray. पिता से कनेक्ट करते He थे, would connect with Jesus. दिन भर चेलों को लेकर चिन्ह और चमत्कार करते थे, He would take the disciples every day and do signs. गांव wonders. शहरों में जाकर बीमार लोगों को चंगा करते थे। He would go to villages and heal people. अब वो नहीं जानते थे क्या कर रहे, पर वो यीशु मसीह अपने पीछे चलने को कहते थे। They didn't understand what Jesus was doing, but they would follow Jesus. आमेन। Amen. जो यीशु मसीह को फॉलो करेगा वो स्वर्ग जाएगा। Those who follow Jesus will go to heaven. इस धरती में भी आप आशीष रहेगा और आप स्वर्ग में भी जाएंगे।
in this earth also you'll be blessed, you also go to heaven. आमेन। Amen. आपका काम है कि इस नए जीवन में, नयापन में, परमेश्वर के अभिषेक में निरंतर बढ़ता जाए। It is your work, the duty to in this new life to get a more and more renewed life. वो तभी होगा जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहे। It only happens when you're connected. अधिकतर लोग प्रभु से कनेक्टेड नहीं है। Many believers are not connected to संडे एक मीटिंग में जाने से आप कनेक्टेड नहीं होता है। just going for one meeting on Sunday will not connect you. हर रोज आपको प्रभु से कनेक्ट करने का, Every day you need to हर रोज connect. प्रभु की आराधना करने का। Every day you need to worship God. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे एक नल नहीं देख रहा है। There's somebody called Nani watching me. आपके जीवन में बहुत सी गड़बड़ी है। There's a lot of confusion in your life. आप आत्महत्या करने के लिए सोच रहे, आपके मन में विचार आ रहा है। You're thinking of committing suicide. आज मेरा प्रभु आपको देख लिया है। My God has seen you. मेरे यीशु आपको चुनकर बोलता है आज My God has chosen you and He's seen आपकी you. सारी परिस्थितियों को प्रभु बदल डालेगा। God is going to change your circumstances. आपके पति के साथ आपका तनाव है, You have a lot of difficulty, problem with your husband. आप एक साथ चल नहीं पा रहे, You are not able to move together. बहुत से तनाव, टेंशन आपके बीच में है, There's a lot of tension between you and your husband. आपके बीच में प्रेम नहीं है। There's no love between you and your कई husband. बार आपका बीच में इतना लड़ाई होते हैं, Many times there's so much of fight between us. एक दूसरे को आप मारते हैं। You beat each other up. आपका एक बच्चा है, आपका बच्चा में कुछ प्रॉब्लम है, You have a child, the child has some problem. उन सारी बातों से आप चिंतित हैं। You're very anxious because of that. आज मेरा प्रभु आपको ढूंढ निकाला है। My God has seen you. इस वीडियो के द्वारा आप देख रहे हैं, You're seeing me through this video. नलनी प्रभु यीशु आपसे प्रेम कर रहा है। I need Jesus loves you. आज जब आप अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में देगा, Today, if you give your life to Jesus, आप आशीष पाएगा। you will be blessed. आपके जीवन में अब तक जो खुशी आनंद नहीं आया, प्रभु आपको देने वाला है। Now what the joy you have not got, God is going to give आपकी you. पुरानी आदत और स्वभाव को निकाल कर आपके और आपके पति के अंदर नया स्वभाव प्रभु डालेगा। God is taking away the old nature of you and your husband and He's putting a new nature in your आपका husband. आपका जीवन वही समान नहीं Your रहेगा। life will never be the same. मैं बता रहा था दो बातें। I was saying two things. फीस्ट ऑफ अनलीवन यानी कि अख़मीरी रोटी की फीस्ट में The feast of the unleavened bread, वो लोग मनाते हैं फीस्ट, they would celebrate. कारण पुराने स्वभाव निकल गया। Why the old nature is gone? दूसरा नया स्वभाव प्रभु दिया है। Because God gave a new nature. हालेलुया, जोर से बोलो, मुझे नया स्वभाव दिया। Say loudly, I got a new nature. क्या हम सेलिब्रेट करेंगे उस Shall नए we स्वभाव में? celebrate the new nature? उस नया स्वभाव में हमको निरंतर बढ़ते जाने का। We have to keep on increasing. जब आप in बढ़ते जाएगा, प्रभु नए नए आइडियाज, नए नए प्लान्स देगा। God giving new ideas and new plans. आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। Your life will never be the तीसरी same. बात, The third point. हालेलुया, आपके ऊपर जो पाप की सामर्थ्य वो टूट गया। The power of sin that was over you has been destroyed. कम ऑन, जोर से बोलो, जब मैं यीशु मसीह में आया, Say, when I came to Christ Jesus, आप करना नहीं चाहता था, वो सारी पापों को आप करते थे, you didn't want to do it, but you would do it. क्योंकि आपके ऊपर पाप की सामर्थ्य था। Because I knew there was a power of sin. पर जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु के लिए चलने लगा, वो पावर को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। The day you received Jesus Christ and started walking in Christ, that power was broken. आमेन। वो उत्सव इसलिए वो मनाते थे क्योंकि वो उस गुलामी से आजादी पाया। They would celebrate that feast because they came out of bondage. वो गुलाम थे, वो करना पड़ता था, वो जो बोलते तो सब कुछ गुलामी में सब कुछ करवाया जाता है। They were in bondage. They had to do whatever Pharaoh said. They were so locked up. प्रभु मसीह में वो सामर्थ टूट गया। But in Christ Jesus, the power of sin खबर is जोर से broken. बोलो, यीशु मसीह में पाप की सामर्थ टूट गया।
say loudly that in Christ Jesus the power of sin has been destroyed from और my जिस life. दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन से मेरा परमेश्वर आपके ऊपर होने वाला पाप की सामर्थ को नष्ट कर दिया। The day you receive Jesus Christ, the power of sin in your life has been destroyed. मत्ती 1 उसकी 21। Matthew 1:21. मिला? Did you get it? वह पुत्र जनेगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Matthew 1:21. 21 मत्ती के सुसमाचार 1 उसका 21। Matthew 1:21 says, "And she will bring forth a son, हाँ and shall call his name Jesus, हाँ for he will save his people from their sin." आमेन। वो हमें पापों से बचाता है, यीशु मसीह। Jesus is saving us from sin. आपका कर्म आपको पापों से नहीं बचाता, Your work cannot save you. आपकी पुण्य काम आपकी पापों से नहीं बचाता। Your good work will not save अगर you. हमारी पाप हमें बचाता है तो प्रभु यीशु को आने की दरकार नहीं, If our work can save us from sin, then there's no need of Jesus coming. या कोई मनुष्य या कोई चीज या कोई जानवर आपकी पापों को बचा नहीं सकता, मोक्षा नहीं दे things, सकता। no animal, nothing can give you एक ही व्यक्ति salvation of आपको sin. पाप से आजाद करता है, उसका नाम है यीशु मसीह, Only one person can save you from the sin, that is Jesus Christ. क्योंकि वो पहला परमेश्वर है, First, He is God, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र वाला परमेश्वर है। because He is a God who is holy. पाप क्या है? What is sin? परमेश्वर की महिमा से गिरना, To fall short of the glory of परमेश्वर की God, बातों का उल्लंघन करना। to go disobey God's word. आमेन। Amen. वो कैसे हुआ? शैतान ने करवाया, What happened? Satan made you do it. शैतान ने प्रभाव दिए, इसलिए ईव और आदम ने पाप किया। Satan deceived them, therefore Adam and Eve sinned. और जब आप यीशु को अपना परमिशन देते तो वो शैतान की वो पाप की गढ़ टूटता है और आप पाप से आजाद हो जाते हैं। When you give permission to say to Jesus, all the sins bondage is broken. इसलिए प्रभु यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं करते, Therefore, Jesus doesn't force anybody. ना ही हम किसी को जबरदस्ती करते हैं। Nor can we force और someone. आपका दिल में वो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होता है। But in your heart to heart, you have a hunger and thirst. for आज जब God. आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, When you receive Jesus into your life, वो शैतान आपके जीवन से निकल जाता है, Satan goes out of your life. और वो शैतान की स्वभाव आपके जीवन से निकल जाता The है, nature of Satan is out और of प्रभु your life. आपको नया स्वभाव देता है। God gives a new nature. और फिर जितना आप प्रभु में बढ़ेगा, The way you grow in Jesus, उतना प्रभु में और प्रभु के स्वभाव में बढ़ते and the जाएंगे। more you will become like the nature of Hallelujah. Jesus. Hallelujah. प्रभु आपके जीवन से वो पाप की सामर्थ को तोड़ देता है। God wants to, Jesus destroys the power of Satan. in मनुष्य your को life. बनाया परमेश्वर अपनी स्वभाव के लिए, Jesus, जैसा वो है God created us to have His nature, just as He is. उसी तरह जब हम यीशु को ग्रहण करते तो उसकी स्वभाव मेरे अंदर आ जाता है। Just like that, when we receive Jesus into our life, His nature comes into us. इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा 9 फलों से हमको भरने का है। Therefore, Holy Spirit within us overflows with the 9 fruit of the Holy प्रेम, Spirit. आनंद, कृपा, कितने लोग को मालूम है? 9 Love, फल, joy, peace, patience. How many of you know it? 9 वरदान से भरने का है। Now, 9 gifts of the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 3:26। Acts 3:26. परमेश्वर ने अपनी सेवक को उठाकर God raised His servant तुम्हारे पास भेजा है and sent him to you, कि तुम में से हर एक को so that you उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। can turn away from their sins and turn to Him. इसलिए प्रभु के दासों को रखा है, That's why God has kept God's servant. पास्टर, प्रेरित, अपोस्टल्स, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, शिक्षक को रखा है, That's why God has kept the fivefold ministry. ताकि वो आपको ट्रेन pastors, करे। preachers, prophets to train you. उन्हें प्रभु ने भेजा है God has sent them. ताकि आप पाप में जी रहे थे, आप प्रभु में जीने के लिए निर्णय लिया, वो प्रभु की अभिषेक में आपको बढ़ाए। But you were living in sin, but through them they can increase you in anointing. इसलिए प्रभु की दासों की आदर करो, Therefore, respect and honor उनकी God's वचनों जो वो बोलता है सुनो, servant. When they say you some word, उसे listen. लिख के लो, Write it down. अपने जीवन में अप्लाई करो। You apply it in your life. आप आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, पवित्रता में पवित्रता बढ़ते जाएंगे। So you will enlarge and increase in blessing to blessing, glory to glory, and in holiness. जब मसीह यीशु में आप बढ़ता रहता है, पाप की
सारी गर्द टूटता है, आप पूरी तौर से आजाद When होता you है। increase in Christ Jesus, all the nature of sin is broken. परमेश्वर की फेवर आपके साथ है, God's favor comes upon you. परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. रोमियो 6 उसका 14 Romans 6, 12, 14. मिला, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। Romans 6, 14 14. तब तुम पाप की प्रभुता न होगी, For sin shall not have dominion over you, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन but नहीं, not under law, वरना अनुग्रह के अधीन। but under grace. जब आप यीशु मसीह में आता है, पाप का सामर्थ टूट गया और परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर आता When है। you come to Jesus Christ, the power of sin is broken and you get the anointing of God. इस सत्य को मनाओ, उत्सव मनाओ। So celebrate this truth. अब मैं पाप के लिए इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, Therefore, Apostle Paul says, I'm dead to sin. मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ, I'm alive to God. मैं निरंतर मसीह में बना रहूंगा। I'll always live for Christ. ये अच्छी खबर हमेशा आपको प्रभु में बढ़ाता जाएगा। This good news will always make you increase in वो Christ. आपको पवित्र करेगा, Keeps you holy. आपका शरीर को कंटैमिनेशन से बचाएगा। Keep your body from contamination. आमेन। Amen. आपका प्राण, आपका मन को आप संभालेगा, सावधान रहेगा। When you control your mind, your heart. 2 कोरिन्थियों 7 उसका 1। 2 Corinthians 7:1. अतः ये प्रियो, अतः ये प्रियो 2 Corinthians 7:1 says, Therefore, जबकि ये प्रतिज्ञा having these promises, हमें beloved, मिला है, let us cleanse तो ourselves. आओ Let us cleanse ourselves अपने आप को शरीर, from all filthiness of flesh आत्मा and की spirit. सब मलिनता से शुद्ध रहे, Be holy, perfect, परमेश्वर का भय रखते हुए perfecting holiness in the fear पवित्रता of को God. सिद्ध करें। In the fear of God. परमेश्वर का वचन कहता है, God's word says it. अपने आप को, We have to keep ourselves, शरीर और आत्मा को the spirit and soul. सारी मलिनता से बचाए We रखें। must keep ourselves from all defilement. पुराने दोस्त आपको पाप व्यभिचार में फंसाते थे, उनसे दूर रहो, Be far from the old friendship. नशे से दूर रहो। Keep away from addictions. नहीं चाहिए मुझे, You don't need it. मुझे सबसे बड़ी नशा यीशु मसीह मिल The गया है, greatest addiction is Jesus Christ. I मैं will उसमें बढ़ते जाऊंगा। I will keep on कभी growing. देखा that. एक नशा वाला व्यक्ति I've seen him be drunk. थोड़ा से पीते, थोड़ा थोड़ा पी के अब गटर में ही पी के पड़ा रहता है। He starts with little by little, then he's always in the gutter. उसी तरह The same अब man. जब प्रभु में आता है, प्रभु की नशा में बढ़ता जाना है। When you come into Christ, you will start increasing in आपके addiction. रंग रंग में यीशु का नाम गूंजना In मन, every part of your life, the voice, the power of the Holy Spirit. आपकी Jesus कण will flow. कण में प्रभु की अभिषेक की किरणें बहना बनता है। In every part of your being, the rays of Christ should flow शरीर और आत्मा में सब मलिनता से शुद्ध करे, to cleanse ourselves from all, परमेश्वर की भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। perfecting holiness in the fear of God. परमेश्वर की भय रखता, We have to keep प्रभु the का fear of भय God. मतलब ये प्रभु के सामने कांपना नहीं, The fear of God doesn't mean that we tremble. प्रभु का भय मतलब प्रभु को आदर देना, Fearing God means to respect हर God, रोज प्रभु की महिमा करना। to glorify God. हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम प्रभु की आदर करते When we हैं। read the word, we are ये respecting वचन God. जो प्रभु मेरे लिए दिया है, मैं समय निकालता है, मैं प्रभु की आदर करता हूँ। When I read the word, I take out time, I respect अब God. प्रभु मुझे पवित्र करता है, God makes me प्रभु holy. मुझे अपनी स्वभाव से भरता है, God fills me with His उसकी nature. सोच मुझे देता He है। gives me His thoughts. फिर मैं पाप के लिए नहीं, मैं मसीहा के लिए हूँ। Then I'm not for sin, I'm for Christ Jesus. आमेन। Amen. पाप का वो पाप से नफरत करने का है, When we hate sin, नहीं, पाप का गढ़ से नफरत करने we का है। hate the stronghold जो of sin. परमेश्वर नफरत करता है, आप भी नफरत करने We का must है। hate what God जो hates. परमेश्वर पसंद करता है, वो आप भी पसंद करने What का है। God loves, we must hate. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर गिरा, All the wrath of God came upon Jesus. इसलिए यीशु मसीह बोला, क्या बोला यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर, Jesus said, my God, why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया?
he cried out from his heart because हो God, सके तो ये पात्र मुझसे निकाल दे। if possible, take away this cup of suffering from me. देखो प्रभु यीशु को मरने के लिए ये नहीं था, मरने के लिए क्या खौफ नहीं था, Jesus didn't want to die. क्योंकि मौत को परमेश्वर ने बनाया। So Jesus, God made death. पर परमेश्वर का एक ही खौफ था, मैं पिता परमेश्वर से अलग हो रहा है। There's only one fear in क्योंकि Jesus' पिता heart. परमेश्वर I'll be far पवित्र away है। from God. पिता परमेश्वर पवित्र है। God is बड़ा a ध्यान holy से सुन रहे, God. मैं क्या बोल रहा Listen हूँ। what I'm saying. परमेश्वर यीशु मसीह पिता से दूर होना नहीं चाहते, इसलिए बोला मुझे ये पात्र, Jesus, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Jesus never wanted to be separated from his Father. That's why क्यों he मालूम said, है? "My God, why have you forsaken me? क्यों मालूम है? Why did God forsake आप क्या me? मेरे पापों को ले आ, Because इसलिए all the sins of the world, दुनिया के world सारी was upon पापों him. को यीशु मसीह पर डाला गया, The entire sins of the world was put upon Jesus. क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। The wages of sin is death. किसी ना किसी, पहले जानवर मरते थे, अब यीशु मसीह मरा। In the Old Testament, the sacrifice was of animals. वंस फॉर ऑल, Once for all. सारी पापों की बलिदान उसने ले लिया। Once and for all, he took all the sacrifice of sin upon him. इसलिए हम बोल सकते हैं, मेरा पाप को लेके यीशु मसीह मरा, मैं पाप के लिए मर गया। Therefore, we Hey, can boldly hallelujah. say that Jesus took away Hey. took my sin and died, that I am died to sin. वापस बोलता हूँ, मेरा यीशु मसीह पाप को लेके मरा, मेरे पाप को लेके मरा, और मैं पाप के लिए मर गया। Therefore, we can say Jesus took my sins and died for it, so that I am dead to sin. आमेन। Amen. इतनी भयानक चीज परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए किया, मैं कैसा वापस पाप कर सकता? कभी नहीं। Awesome thing God has done. How can I go back to sin? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एशिया 52 उसका 14, Isaiah 52:14. एशिया के किताब 52 उसका 14। Isaiah 52:14. मिला? Do you get it? जैसे बहुत से लोग से देखकर चकित हुए, Just as many were astonished at him. क्योंकि at उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ him. था, As his visage were marred, मनुष्य का सा न जान पड़ता more था, than any man. उसकी सुंदरता भी आदमियों सी न हुई थी। His form more than the sons of men. वैसे ही वह बहुतों की जातियों को पवित्र करेगा, So shall he sprinkle उसको many देखकर nations. राजा शांत रहेंगे, King shall shut क्यों their वे mouth. ऐसा बात देखेंगे For what had been told जिसका them, वर्णन उसके सुनने में भी नहीं आया, them they shall see. ऐसी बात उनकी समझ में भी नहीं आएगा What they not heard, जो they shall उन्होंने consider. अभी तक सुनी भी नहीं They थी। shall consider. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहा। For us, Jesus suffered everything. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आप पाप मेरे पर राज्य नहीं कर सकता। Therefore, we should say, sin shall not have dominion over me. पाप की सामर्थ आपके ऊपर से कट गया। The sin's dominion has been cut off. अब मेरे ऊपर प्रभु की अभिषेक और प्रभु की Now सामर्थ। the anointing of God is upon me and the power of God. कोई आपके जीवन में खमीर है, ईस्ट है, Is there any evil in your life? निकालो। Take it away. इसलिए दाऊद कहता है, सर्च मी ओ गॉड, इफ देयर इज एनी विकेडनेस इन मी, टेक इट ऑफ। मुझे मुझे ढूंढ और देखो कुछ ऐसी चीज है जो दुष्टता है मेरे जीवन से निकाल दे। दाऊद कहता है, David says it. क्या आप हर रोज कहेंगे? Do you say it every जाने day? अनजाने में कोई भी पाप होता है तो परमेश्वर से बोलो, मुझे क्षमा करो, Knowingly, unknowingly, if there is any sin, confess it to मैं God. पाप के लिए मर गया, I'm dead to मैं sin. मसीहा के लिए जिंदा I'm हूँ। alive to God. प्यूरिफिकेशन इज द सेलिब्रेशन। शुद्धता एक उत्सव है। आपको शुद्ध, हमेशा पवित्र और शुद्ध। यीशु बोला, मैं जैसा पवित्र हूं, तू पवित्र है। Jesus said, "Be holy as I am holy." वो तभी होगा जब हम उस शुद्धता को सेलिब्रेट करते हैं। It will only happen when we try to celebrate. मसीह यीशु में वो शुद्धता को हमको सेलिब्रेट करने We का। have to celebrate holiness. in हालेलुया। Hallelujah. जब भी आपका जीवन से कुछ पाप होता है, पाप क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा पाते हैं, उस शुद्धता, उस पवित्रता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो और आनंद मनाओ। When we confess your sin, ask forgiveness and celebrate the holiness. And हर रोज rejoice. उस पवित्रता में आनंद मनाओ। Always we celebrate and rejoice in the आमेन। holiness God has पवित्र, given. देखो आपके जीवन में अगर पाप से भरा हुआ है, पवित्रता आपको चाहिए। If your life is full of sin, you need holiness. आप कई बार उस पाप से निकल नहीं पा रहे, Many times you want to get out, but you're not able to get out पर of वो the sin. पवित्रता की गीत गाओ, Sing the celebrate and यीशु sing मसीह के holiness. नाम से गाना गाओ,
Sing in the name of Jesus. पवित्र आत्मा के नाम से गाना गाओ, Sing in the power of वो Jesus. गंदगी टूट जाएगी, That dirt and filth will वो be पाप broken. नष्ट हो जाएगा। That sin will be कालवरी क्रूस में प्रभु ने पाप की सत्यानाश किया, in the cross of Calvary. Jesus destroyed this power of sin. इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्रूस की कताम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है। The message of cross for those who are being saved is power. आमेन। जब आप उस पवित्रता को मनाते रहेंगे, आपके जीवन में विजय और पवित्रता का विजय जीवन जिएगा। When you celebrate the holiness, you will live a victorious life. रोमियो 6 उसका 6 और 7 Romans 6, 6 and 7. आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। We'll read the last word and finish. तैयार है? Are you ready? हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, Romans 6, 6 says, knowing this, that our old man was crucified with him, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए that the body of sin might be done away with, और हम आगे को पाप की दास्तों में ना रहे, that we shall no longer be slave of क्योंकि sin. जो मर गया For he who has died वह पाप से छुटकारा पाया है has been freed from sin और धर्मी ठहराया। and made righteous. 11वां वाक्य, Verse ऐसे ही 10. तुम भी अपने आप को पाप के लिए Likewise, you also reckon yourself to तो death मरा, to sin, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित but alive to समझो। God in Christ Jesus our Lord. जो से बोलो मसीह यीशु में मैं जीवित हूँ। Say, in Christ Jesus I am alive. कितने लोग समझा? How many of you heard हमको it? जय मनाने का, You उत्सव have to- मनाने you का, have to rejoice and celebrate. समझ में आया? Did you understand? पुरानी स्वभाव निकल गया, Old nature has gone away. वो हमको उत्सव मनाने का You है। have to celebrate. नया स्वभाव आया प्रभु का, उसके लिए हमको सेलिब्रेट New करने का nature है। has come of Christ, therefore we celebrate. शैतान और पाप का सामर्थ टूट गया, परमेश्वर की अभिषेक मुझ पर आया, इसलिए हमको सेलिब्रेट करने का है। The power of Satan and sin has been broken and God's anointing has come upon me, therefore we celebrate. तैयार हम प्रार्थना करने के Are लिए? you ready to pray? इस अच्छी वचन को हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, Thank God for this पास्टर nice सेलेना word. में अगुवाई करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Shall we thank God for this wonderful word has इस अच्छी come? वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। Yes, what is the feast of the unleavened bread? अख़मीरी रोटी का पर्व का क्या है? It is a celebration, वो उत्सव मनाने का है। the great awesome thing that Jesus did in our life. यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो अद्भुत किया, He destroyed the power of Satan and sin from our life. शैतान और उसकी सामर्थ को हमारे जीवन से प्रभु ने Now नष्ट the कर old दिया। nature has passed away. पुराने स्वभाव निकल गया, Now the new nature has come. नए स्वभाव आ गया। We are a new creation in Christ Jesus. मसीह यीशु में हम नया सृष्टि है, All things are passed away. पुरानी बातें निकल गई। Look in your life, all things have become new. अपने जीवन में देखिए सब कुछ नया हो गया है। See, when we become born again, जब आप नया जन्म लेते our हैं, spirit becomes new, हमारी आत्मा नया होता है, but our soul and body हमारा is being प्राण और renewed. शरीर Is being renewed. नया होते जाता है। So how do you make it new? आप कैसे नया First of बनाएंगे? all, offer your body as a living sacrifice. अपनी शरीरों को जीवित तौर से अर्पण करो। Second, take the word of God and renew your mind. आप वचन को लो, अपने मन को नया करो। Keep saying to yourself, I'm holy as God is holy. आप बोलते रहो अपने आप से, मैं पवित्र हूँ जैसा परमेश्वर पवित्र है। I'm pure as God is pure. मैं पवित्र हूँ जैसा परमेश्वर I'm पवित्र है। perfect as the Heavenly Father is perfect. जिस तरह प्रभु परिपूर्ण है, हम परिपूर्ण हैं। Hebrew 1:9 says, इब्रानी 1 उसका 9 कहता agree है, with God and say it for yourself, और परमेश्वर के साथ एक होकर उसे घोषणा करो, that I love righteousness. मैं नीतिमता से प्रेम I करता हूँ, love righteousness. मैं धर्मी से प्रेम I करता हूँ, hate wickedness. मैं बुराई से नफरत करता I हूँ, love everything what God loves. मैं वो प्रेम करता हूँ जो प्रभु प्रेम करता And I है, hate what God hates. जो प्रभु नफरत करता है उससे मैं नफरत And करता the हूँ। word of God says something amazing after that. उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, That when we love righteousness जब हम नीतिमता को प्रेम करेंगे and hate wickedness, और बुराई को नफरत करेंगे, God will anoint us परमेश्वर हमें अभिषेक with करेंगे, the oil of joy and gladness हमारी जीवन को खुशी और आनंद से भर देंगे। above our companions, हमारी लोगों के बीच में, above them. उनके बीच में। Maybe you're studying, हो सकता है पढ़ता होगा, all your friends are in sin,
और आपके सारे दोस्त पाप में हैं, in your school and colleges, उस आपके स्कूल और कॉलेज में but you're leading a holy life, आप पवित्र जीवन जीते हैं, God will make you come up in your class. आपके क्लास में आपको नंबर You will 1 be बनाए, first in the class. आपके क्लास में आप नंबर Maybe 1 you're होंगे। doing work in your office or doing आप business, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, and you see everyone in adultery in your office and आपके ऑफिस में और आपके बिजनेस में सब व्यभिचार कर रहे हैं and they are into drinks and all those things, और वो नशा करने में व्यस्त है, and you lead a holy life. आप पवित्र जीवन जीते हैं, God will make you number 1 in your office and in your business. आपके बिजनेस में आपकी नौकरी में प्रभु उत्तम करेंगे। That's what God's word says in Hebrew 1:9. और इब्रानी 1 उसका नाम में वही परमेश्वर का He वचन will कहता है, anoint you with the oil of joy and gladness आपको अपनी अभिषेक आनंद और खुशी की अभिषेक करेंगे above your companions. आपके दोस्तों के बीच में। Isn't that worth celebrating? क्या आप उत्सव मनाने के लिए वो God wants you to make काफी you the नहीं? head, not the tail. प्रभु आपको सिर बनाना चाहते हैं, पूछ नहीं, Always above, not below. हमेशा ऊपर नहीं, नीचे नहीं। So we celebrate our holiness. अब पवित्रता को हम सेलिब्रेट करें, उत्सव मनाएं। Hallelujah. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Maybe you're struggling with sin today. हो सकता है आप पाप से परेशान हैं, Maybe you're hitting your wife every day. हो सकता है आपकी पत्नी को आप मारते हैं हर रोज। Tell God, God, take away this habit. बोलो प्रभु से, प्रभु जी इस आदत को मुझे निकाल। Maybe you're getting angry with your children and husband. आपके बच्चों और पति से आप गुस्सा होते हैं, Maybe you're nagging all the time. हो सकता है आप हमेशा नैग करते हैं। And so tell God, God, take away this habit. आप परमेश्वर से बोलो, प्रभु जी इस स्वभाव को निकाल दें। Maybe you're gossiping and slandering others. हो सकता है आप चुगली करता है और दूसरों को गिराता है। Tell God, God, take away this habit. प्रभु से कहे, प्रभु जी इस स्वभाव को निकाल दें। Maybe you want to come on the drinks and drunks हो सकता है आप नशे से बाहर आना चाहते हैं and from that adulterous relationship. और उस व्यभिचारी रिश्तों से You want to come out. आपको बाहर आने का है। Let you pray, God will hear you. आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। Once you're a believer, और एक बार आप विश्वासी हैं you'll hate those things. और उन बातों से, पाप से आप नफरत करेंगे। So shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we want to thank you for this beautiful day, इस अच्छी वक्त के लिए for धन्यवाद, this beautiful word. इस वचन के लिए धन्यवाद। You are speaking to each one of us. हम सबों से आप बात कर रहे हैं प्रभु। Lord, we hate sin. हम पाप से नफरत करते हैं, Everything that's small sin or big sin. छोटा पाप हो बड़े पाप हो, We hate it, Lord. हम उसे नफरत करते We हैं। reject all the lying nature in us. हम पर होने वाला झूठ की दुष्ट आत्मा को हम नष्ट कर All दें। the gossip and slander. चुगली और नीचे गिराना Everything that's not according to your holy will. और जो भी बात है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, Lord, uproot it from our life. हमारी जीवन से उखाड़ दे प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। And thank you for your divine nature is in us. और स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय स्वभाव हमारे अंदर दिया। धन्यवाद। Jesus, who knew no sin, यीशु मसीह जो पाप को नहीं जाना, he became sin for me, मेरे लिए और आपके लिए वो पाप बना, that I might be called the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की नीतिमत्ता ठहराए जाए। I am the righteousness of God. मैं अभी परमेश्वर की नीतिमत्ता I हूँ। refuse to listen to the lie of the devil. शैतान की सारी झूठ पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। I am the righteousness of God. मैं प्रभु का नीतिमान हूँ। Because God's word says it in 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 21 में लिखा है, Lord, bless and heal every heart today. हर दिलों को तू आशीष कर और चंगा Heal कर। relationship which is broken रिश्तों को जो टूटा है प्रभु जी जोड़ दे, with you and with others. आपके साथ और दूसरों के साथ। Lord, let them draw close to you. वो आपके नजदीक आए प्रभु Let जी, them have an intimate relation with you. आपके साथ नजदीक की रिश्ता होने दे प्रभु जी। And they will know your truth and truth will set them free. वो आपकी सत्य को जानेगा और सत्य उसे आजाद करेंगे। We want to celebrate the new nature of Christ in us. और नए स्वभाव प्रभु की में जो हमारे अंदर है उसे हम उत्सव मनाते हैं। We celebrate the spirit of holiness in us. पवित्र आत्मा की पवित्रता हम उत्सव मनाते हैं। Christ in me is the hope of glory. यीशु मसीह मुझ में आशा का, महिमा का आशा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद I यीशु, give you all the glory सारी महिमा तुझे देता हूँ for what you have done for me. जो हमारे लिए, मेरे लिए किया प्रभु जी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। Amen. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we सारी thank कोरोना you. वायरस को नष्ट कर देता हूँ। Destroy the spirit of हमारे इंडिया को हम coronavirus. आजाद करते हैं। We son be free. महामारी India. दुष्टता के अंत हो जाए। Let the plague come to an end. प्रभु की महिमा और अभिषेक बढ़े। Let your name, your anointing flow. इंडिया God. की कोना कोना तेरे अभिषेक बढ़े। Let every corners of the earth that the anointing flow, God. प्रभु जी तू आशीष कर।
Lord, you bless us. सारी कोरोना वायरस पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना We करते pray हैं। for all those who are afflicted with वो मरेंगे coronavirus. नहीं, They will जिंदा not रहकर die, तेरी they will महिमा। live and declare your works. पास्टर पीटर राय पत्नी और बच्चों को तेरे हाथ Lord, we में pray देता for हूँ। Pastor Peter Rice, ये wife परिवार and को तूने children. चुन लिया, Lord, you धन्यवाद। have chosen this अनेकों के family लिए आशीष to be a बना, blessing for many. महिमा से भर दे। Lord, fill them with your इंडिया glory. के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for India, जम्मू से लेके कन्याकुमारी for तक, Jammu to Kanyakumari, बंगाल से लेके for गुजरात तक, Bengal to हर Gujarat, स्टेट, every state, हर राज्य every यीशु को जाने पर nation will know Christ. इंडियन गवर्नमेंट्स को हम तेरे हाथ में देता We हूँ। give the Indian government into your सरकारी hands. ऑफिसर्स को तेरे हाथ में देता हूँ। We give the government officials into your hands. डॉक्टर्स को तेरे हाथ में The देता हूँ। doctors, नर्सेस को तेरे हाथ, nurses, हॉस्पिटल्स hospitals, एनजीओस को तेरे हाथ में, NGOs. सबों को तू आशीष कर। bless everyone. स्पेशली जिनके पास परेशानी है, हर रोज से पैसा नहीं मिलते, All those who are troubled, who don't have उनकी money, जरूरत lack को of तू money, पूरा कर। Lord, meet their need. लोग एक दूसरे की मदद करें, Let everyone help each other आशीष कर। and bless it. कलीसियाओं को तेरे हाथ में देता Lord, हूँ। give the church into your हर hands. छोटे बड़े कलीसिया इंडिया में, Let every small and इन big दिनों church में in कलीसिया India, में भविष्यवाणी करता हूँ, I am prophesizing. कलीसिया बढ़ने दे, Let churches हर गांव multiply. में कलीसिया होने दे। Every village have a church. 6,50,000 विलेज इंडिया में, हर गांव में कलीसिया होने दे। Let यीशु के नाम 650,000 villages in जवान every लोग तैयार place, हो। let there be church. प्रभु जी, जवान लोग तैयार हो Let youths be ready, O ताकि वो God. हर गांव में Let जाकर me go to every village कलीसिया के द्वारा through the church. तेरी महिमा करेंगे, Your name will be क्योंकि आप glorified. आने वाला है Because you come in तेजस soon कलीसिया को लेने for के। a radiant धन्यवाद bride. यीशु। Thank you, Lord. सारी पास्टर्स को तेरे हाथ Give में all दे, the pastors उनके in their परिवारों को प्रभु जी, bless their उनके बच्चों को प्रभु जी, family. तूने आशीष कर। Bless them, Lord. सारी महिमा, Give गौरव, you all the आदर glory, तुझे देता हूँ, honor and praise. यीशु के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name सुन we और pray. Hear ग्रहण and कर। answer. और सबने कहा And all God's people said, Amen. Amen. हर रोज हम सुबह 7 बजे आते हैं, Every morning we come at आप 7. भी आइए, You too come दूसरों को भी बुलाइए, and bring others. शेयर करिए, Share with others. ताकि आपकी एक शेयर So that one share of yours अनेकों के लिए आशीष will be a बनेगा। blessing for many. वही खाली नहीं, प्रभु आपको पुरस्कार देंगे। God will reward you. पिता परमेश्वर का प्रेम, And the love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of Lord पवित्र Jesus, आत्मा की fellowship सौभाग्य with the Holy Spirit, हम सबों के साथ be with all of यीशु us. की बादलों में Till आने the coming तक of Jesus बने in रहे। glory. Be with और us. सबने कहा All people आमेन। said, Amen.